Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about interrogative sentences in indirect speech. Here we shall discuss forms and its uses. How we can change interrogative sentences into indirect speech. First, what is interrogative sentence? Interrogative sentences is used to ask questions. There are two types of interrogative sentences. One is non-reasonable or yes no answer type interrogative questions, and another is WH type interrogative question. Yes no answer type interrogative questions are those which begins with helping verb like do, does, did, is, am, are, was, were, will, shall, etc. and always ends with question marks like do you go to school or are you playing here. These are non-reasonable or yes no answer type question. And another one is what WH type questions that begins with question words like who, what, where, when, why, whenever, etc. Examples are who are you, what are you doing, and how are you doing. Why should I tell you all this? Because it depends upon only the questions type, like non-reasonable or reasonable. The rules are different to change into indirect speech. Like general rules. Reporting verb said to is changed into asked, inquired of, wanted to know or demanded to know, etc. Change of tense, pronouns, adverb of time and places happens in same way as in assertive sentences. Conjunction if or whether is used in yes no type questions. Questions which begins with helping verb, conjunction if or whether is used. In indirect speech, interrogative sentences are changed into assertive sentence and question marks becomes full stop. Means जो interrogative sentences होते हैं वह assertive sentence में change हो जाते हैं और जो question mark होता है वह हटा करके full stop में change हो जाता है. Examples are Hari said to me, are you reading a book? अब here are non-reasonable sentence है तो Hari said to me, said to change into asked. Here written I have asked or inquired of. तो हरी asked me and R से begin हो रहा तो हम इसमें helping जो conjunction यूज करेंगे वो if या whether में से यूज करेंगे. If are you reading a book, इसको हम चेंज कर देंगे assertive sentence में. तो you are reading a book और you are reading a book में जब tense चेंज होगा past में जब जाएगा तो I was reading a book. तो टोटल जब हमारा इनडायरेक्ट में बनेगा तो हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग अ बुक. राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे. राम आस्क्ड हरी वेदर. अब यू विल गो टू स्कूल टुडे को हमने आपको बताया था विल चेंज इनटू वुड तो ही वुड गो टू स्कूल. अब टुडे चेंज इनटू दैट डे तो दैट डे. आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज. I asked him if you can tell me. तो he could tell me what the time was. And direct में she said to me, do you know Sohan? तो जब do, does, did होते हैं तो यह जब हम do, does को चेंज करते हैं तो यह सिंपली जब चेंज होता है तो यह हमारा चेंज होता है वर्ब सेकंड फॉर्म में. तो वेदर आई न्यू सोहन, डू यू नो सोहन तो यू नोज सोहन तो आई न्यू सोहन. तो यह हमारा चेंज रहा. नेक्स्ट she asked Hari do you go there. She asked Hari if he went there. Sometime go change into went if time and place changes. And father said to me do you not obey me. Father asked me if I did not obey him. Do not है तो यह चेंज हो जाएगा did not में और assertive में चेंज हो जाएगा. Ramesh said to his friend don't you go to college today. Ramesh asked his friend if he didn't go to his college that day. Don't है तो do not है यानी तो यह चेंज हो जाएगा did not में. He said to me did you lend me your book. He asked me whether. अब did you पास्ट इंडिफिनिट है दिस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस और अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा तो वेदर आई हैड लेंट हिम माई बुक. अब नेक्स्ट इसमें है नॉन रीजनेबल सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, सॉरी रीजनेबल सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं. तो रीजनेबल सेंटेंसेस में जो गिवन क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु एटसेट्रा यही हमारे कंजंक्शन का वर्क करते हैं. बाकी रूल्स सेम एज इट इज non-reasonable sentences and affirmative sentences. I said to her who are you and where are you coming from. I inquired of her. ध्यान रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो said to inquired of में होता है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो only inquired में होता है. I inquired of her who she was. affirmative में चेंज होगा who she was and where she was coming from. Where do you live?
आस्क्ड द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड। अब देखो आस्क्ड द स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ओनली इंक्वायर्ड है। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, तो वेयर डू यू लिव अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो वेयर आई लिव्ड। ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट। हाउ मच हाउ मेनी के साथ नाउन हमेशा फॉलो होता है तो यहाँ भी नाउन फॉलोड उसके साथ होगा। ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। डू यू वांट का पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव में ही वांटेड। द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई डिड यू नॉट है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यह चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव में व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल। और यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। नाउ यस नो आंसर टू द क्वेश्चन। कभी कभी हम जब क्वेश्चन करते हैं तो रिप्लाई में हमें यस या नो मिलता है, तो इसको चेंज करने के रूल्स हैं या तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द नेगेटिव, या दैट सी कुड या सी कुड नॉट हम इस तरह से यूज करते हैं। लाइक जो यहाँ एग्जांपल है सी सेड टू रीटा कैन यू लेंड मी दिस बुक, रीटा सेड यस। तो यहाँ पे जब चेंज करते हैं तो यह जो रीटा सेड यस है इसी यस के लिए यहाँ पर स्पेशली कैसे चेंज करते हैं। सी आस्क्ड रीटा इफ सी यानी सी यूज हो रहा है रीटा के लिए, कुड लेंड हर दैट बुक यानी वो कह रही कि क्या तुम मुझे वह बुक दोगी, तो उसने कहा यस। सी रिप्लाइड दैट सी कुड, उसने रिप्लाइड किया हाँ वह ऐसा करेगी। लेकिन इसी को कुछ ग्रामेरियन बोलते हैं कि इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। सी आस्क्ड रीटा इफ सी कुड लेंड हर दैट बुक, रीटा रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, बट आई एडवाइज यू टू यूज दिस फॉर्मेट टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नॉट दिस। अगेन आई सेड टू आनंद आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। इनडायरेक्ट में होगा आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड दैट ही वाज नॉट। अब जब नॉट होगा तो वर्ब के साथ हम नॉट या लगा देंगे, और जब यस होगा तो ओनली सिर्फ वर्ब ही रहेगा। लेकिन इसी को चेंज कर सकते हैं। आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नेक्स्ट कुछ सम स्पेशल चेंजेस। इफ चॉइस और प्रेफरेंस इज गिवन, कंजंक्शन वेदर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ। दो कंजंक्शन हम नॉन रीजनेबल में यूज करते हैं, इफ या वेदर। अगर उसमें प्रेफरेंस या चॉइस दिया गया हो तो उस केस में हम जो है वेदर का यूज ज़्यादा बेहतर माना जाता है, वो करते हैं। द टीचर सेड टू हरी डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट। अब यहाँ परेड आर नॉट ऑप्शन दिया गया है हाँ या नहीं का, तो इस केस में यूज होगा द टीचर आस्क्ड हरी वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड आर नॉट। तो यहाँ कंजंक्शन इफ के बजाय वेदर ज़्यादा बेहतर होता है। द मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, तो ऑप्शन यहाँ भी है मिल्क और टी, सो वी कैन यूज हियर द मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क और टी। इफ की वजह हम यहाँ वेदर यूज कर रहे हैं। इफ रिक्वेस्ट इज मेड टू सीक एडवाइस और टू मेक रिक्वेस्ट यूजिंग शैल इज चेंज इनटू शुड विद सेकंड और थर्ड पर्सन। मन से ये कहा जा रहा है कि अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस मांग रहे हैं किसी से और शैल का यूज करते हुए, तो उस केस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल वुड में न चेंज होकर के शुड में ही होता है। लाइक रवि सेड व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट। तो ये हमारे कुछ जो है कि स्पेशल चेंजेस रहे। और नॉन रीजनेबल और रीजनेबल सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन feel free to ask me through Google Classroom. Exercise related to these topics will be sent to you through Google Classroom. Thank you.